Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, today's point of discussion will be Section 82 and 83 of Indian Penal Code, which comes under a chapter of General Exception. So, in Section 82 and 83, there is act of child when the child is not liable for any offense. So section 82 में if the child is below 7 years and if he has committed any offense, even if he has committed the offense of murder, there will be a no liability. And under section 83 there is a provision that if the person's age is above 7 years and below 12 years and if he is having no ability to give a rational answer and know the consequences, then there will be a no liability. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 82 और 83 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें एक्ट ऑफ चाइल्ड का प्रोविजन है कि अगर कोई चाइल्ड, कोई बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी कैसी होगी। ये जनरल एक्सेप्शन का पार्ट एंड पार्सल है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पे पूछ सकता है या ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने ऑलरेडी पूछ चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Act of Child, Section 82 and 83 of Indian Penal Code, which comes under the general exception. So Section 82 deals with Act of Child under 7 years of age. So Section 82 of Indian Penal Code deals with if any child whose age is below 7 years and if he has committed any offense under the Indian Penal Code or under any other law, then what will be his liability? So that is discussed under section 82. अगर 7 साल के नीचे अगर एज है किसी बच्चे की और वो कोई ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, उसकी लायबिलिटी होगी भी या नहीं होगी, ये सेक्शन 82 में डील किया हुआ है। So nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. So that is the language of section 82. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. If the age of child is below 7 years and if he has committed any offense, any act, that act will not comes under the category of any offense. 7 साल से नीचे अगर किसी बच्चे की उम्र है और वो कोई भी एक्ट करता है, even if he had committed the act of murder, that is not called an offense. It means the child whose age is below 7 years, he will not be held liable for any offense. 7 साल के बच्चे ने अगर मर्डर भी किया तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो if the age of child is below 7 years, there will be a no liability. In the ordinary course of nature, a person of such age is absolutely incapable of distinguishing between right and wrong. So the child whose age is below 7 years, he cannot differentiate between right and wrong. So he is incapable to differentiate between right and wrong. अगर बच्चे की एज 7 साल से नीचे है तो वो सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो दोनों में फर्क नहीं कर सकता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर ये डिफरेंशिएट कर सकता है तो हो सकता है ऑफेंस और नॉन ऑफेंस में भी डिफरेंशिएट कर सके। इसीलिए चाइल्ड की लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता है। An infant under 7 years can do wrong. So क्या है कि जो 7 साल के नीचे बच्चा है वो गलती कर सकता है, ये बड़ा ऑब्वियस है। हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चे ने कोई अगर गलत काम कर दिया तो हम इंस्टेंटली कहते हैं कि बच्चा है, बच्चे से गलती होती रहती है, एक्सपेक्टेड है कि बच्चा 7 साल के नीचे है तो उससे गलतियां होती रहेगी, रॉन्ग होते रहेगा। दिस डिफेंस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डोली in capex, which means incapable of committing offense. So ये जो डिफेंस है सेक्शन 82 का वो डोली इन कैपेक्स मैक्सिम पे
बेस है, जिसका मतलब ये होता है इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। द चाइल्ड हुज एज इज बिलो 7 ईयर इज टर्म्ड एज अ डोली इनकैपेबल। इट मीन्स ही इज इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता, वो ऑफेंस करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा ट्रीट होता है सेक्शन 82 में। सो he can commit no crime as he is incapable of understanding the consequences of his act. So he cannot commit any crime. Why? Because he is incapable of understanding the consequences of his act. So the child whose age is below 7 years of age, he is incapable to understand the consequences of his act. मैं ये करूंगा तो इसका नतीजा क्या होगा, इसके consequences क्या होंगे, ये चाइल्ड को पता नहीं होता है। इसलिए सेक्शन 82 ये कहता है कि 7 साल से नीचे जिस भी बच्चे की एज रहेंगी, उसने मर्डर भी किया तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। However, if a specific act makes a provision to the contrary, that provision will prevail over this general provision under this section because special law overrides the general law. But यहाँ पर यह भी क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई स्पेशल लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें 7 साल से नीचे के बच्चों को लायबल ठहराया गया है, तो वो लागू होगा, जनरल लॉ लागू नहीं होता। बिकॉज स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर अ जनरल लॉ। स्पेशल लॉ जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल होते हैं, दैट इज द रूल। ये रूल है। अब प्रोबेबल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 82 पे, जो एग्जामिनर ने पूछा है। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2010, 2015 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ चाइल्ड इज नो ऑफेंस व्हेन द चाइल्ड इज, एक्ट ऑफ चाइल्ड इज नो ऑफेंस व्हेन द चाइल्ड इज अंडर 8 ईयर्स, अंडर 10 ईयर्स, अंडर 12 ईयर्स, अंडर 7 ईयर्स। तो हमने एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कब है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। अगर 7 साल के नीचे अगर किसी बच्चे की एज है तो उसने ऑफेंस किया है तो भी उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो राइट आंसर इज 4 अंडर 7 ईयर्स। नाउ सेक्शन 83, सेक्शन 83 डील्स विथ एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 and under 12 of immature understanding. So nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. Suppose if the age of child is above 7 years and below 12 years, 7 साल से 12 साल के बीच में अगर एज है, and if that particular child is having a immature behavior, he cannot differentiate between right and wrong, he cannot understand the question put to him, he cannot understand the consequences of his act, then there will be no liability of such a person. अगर ऐसा बच्चा जिसकी एज 7 साल से 12 साल के बीच में है और उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, सही और गलत में वो फर्क नहीं कर सक रहा है, वो उसके एक्ट के नतीजे क्या होने वाले उसको पता नहीं है, उस सिचुएशन में 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चे ने भी अगर कोई ऑफेंस किया तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। दैट इज दैट एक्ट कम्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन। बट हर बच्चे का एक्ट जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। हम देखते हैं कि बहुत से 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चे इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि उनको सब पता होता है, अंडरस्टैंडिंग उनकी परफेक्ट होती है। तो ऐसे बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी होगी। बट ऐसा बच्चा जिसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं कर पा रहा है, वो उस सिचुएशन में ही उस बच्चे का एक्ट ऑफेंस में नहीं आएगा। नाउ उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग, that is the case. The accused over the age of 11 and below 12 of age picked up his knife and advanced towards the deceased with threatening gesture, saying that he would cut him to bits and did actually cut him. एक बच्चा जिसकी एज 11 साल से 12 साल के बीच में थी, उसने वो चाकू उठाया और डिसीज की तरफ, जिसकी मौत हो गई उसके तरफ गया और उसको ऐसे जेस्चर दिया और उसको ये कहा कि मैं तुमको टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे, और उसने वैसा ही किया। अब यहां पर द हाई कोर्ट हेल्ड दैट
his entire action can lead to one inference that he did what he intended to do and he cannot be regarded as suffering from any immaturity of understanding entitling him to benefit of section 83। तो कोर्ट ने ये कहा कि जैसा कि वो बच्चे ने चाकू उठाया, उसके जेस्चर से पता चल रहा था, उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और जाकर उसने वैसा ही किया, तो कोर्ट ने ये कहा कि वो इमैच्योर नहीं था, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी, जैसा उसने कहा वैसा ही किया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए ऐसे बच्चे को सेक्शन 83 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, वो लायबल रहेगा ऑफेंस के लिए। तो ये थे सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83 विच वी हैव डिस्कस्ड। I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.